to spread awareness among the people related to cancers that occur due to the tobacco consumption and environmental pollution. Sir, still the cancer remains as a major concern. Millions of the families, particularly the average and middle income group people, are being pushed into financial distress because of the extremely high cost of the treatment of the cancer-related diseases. Sir, I request your kind intervention in government taking the following urgent measures in order to reduce the occurrence of the cancers. Ensure accessibility and affordability of all life-saving oncology drugs. Launch a national mass cancer screening mission for early detection. Design an apt policy to support and encourage not-for-profit hospitals by way of providing grant in aids for costly surgical and diagnosis equipments. I therefore request the government to treat this issue as a national priority and take immediate action in this regard, sir. Nip the evil in the bud. Honorable Chairman, sir, I am glad to inform this august House through you that as part of my philanthropic activities, I have established South India's biggest not-for-profit ultra-modern 1,500-bedded cancer hospital in Hyderabad, namely Sindhu Hospital. I appeal all the members of this august House, please visit and to utilize such facility by referring the patients who are underprivileged irrespective of their socio-economic background to Sindhu hospitals. We are ready to serve them, sir. Thank you very much. श्रीमती दर्शना सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे 0 आवर में मेरा विषय रखने के लिए जो अवसर दिया है, इसके लिए आपका मैं आभार प्रकट करती हूँ। महोदय, आज का जो विषय है वो मेरे गृह जनपद चंदौली जिले से जुड़ा हुआ विषय है। वहाँ पर धान के क्लस्टर की स्थापना के संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। महोदय, चंदौली को पूर्वांचल का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के किसान प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन करते हैं। ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं और वे पारंपरिक तथा आधुनिक दोनों तरीकों से खेती करते हैं, लेकिन उनके पास धान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। कटाई के बाद यदि धान में नमी रह जाती है तो उसके खराब होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में कभी कभी किसान अपना धान कम दाम पर बेचने को विवश हो जाते हैं और भंडारण न होने के कारण उचित लाभ नहीं मिल पाता है। महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि 80 और 90 के दशक में भारत अनाज के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहा करता था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण भारत सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करने वाले देशों में शामिल हो गया है। और मुझे आज ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि वर्तमान समय में आज चावल के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है। पहले कांग्रेस सरकार के समय चावल गोदामों में सड़ जाते थे, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याणकारी सोच के कारण 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, हमारा जो जिला है चंदौली चावल उत्पादन में एक बड़ा योगदान दे रहा है, इसी कारण इसको पूर्वांचल का धान का कटोरा कहा जाता है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि किसानों को अच्छा लाभ मिल सके, इसके लिए चंदौली जिले में धान के क्लस्टर की स्थापना की जाए। महोदय, चंदौली में धान के क्लस्टर के स्थापित होने से न सिर्फ चंदौली बल्कि मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। महोदय, चंदौली ऐसा क्षेत्र है जहां देश के विभिन्न हिस्सों के लिए रेल की अच्छी कनेक्टिविटी है, जल मार्ग है और सड़क यातायात भी बहुत सुगम है। अतः धान के क्लस्टर की स्थापना के लिए यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल है। सुरेश रेड्डी गारू। Thank you, Chairman, sir. This is a request for permanently banning the paraquat dichloride, Chairman, sir, which is this herbicide is highly poisonous. It is killing our constituents,
destroying rural health, poisoning the soil, water and air that our farming communities depend, sir. This herbicide is used for weed control. And this herbicide is easily available across all the pesticide stores in our country and including online stores like Amazon and Flipkart. Most of the suicides in our country which are committed, they are using paraquat, sir. Accidental deaths, mostly children who touch this, which is stored in a bottle, consume it, and most of the deaths of the children are also due to this paraquat. It is reported that there are 100 suicide deaths in Telangana alone and almost 1,000 suicide deaths in India every month by consuming this paraquat, sir. Telangana High Court recently has directed state and central governments to respond to this issue. Chairman, sir, even in Miraj, Maharashtra, reports are 50 deaths every month which are occurring there due to this paraquat. Unfortunately, there is no antidote for this paraquat. Normally, such herbicides are banned when they do not have an antidote. The emetic solution used in this should be 0.5%, but in India, what is being sold is only at 0.1%. So that does not create a vomiting sensation, which would have acted as an antidote and have got the pesticide out of the system, sir. The Indian Medical Association recently held meetings across the country, including Hyderabad, and have requested to ban this herbicide immediately, Chairman, sir. Sir, 74 countries across the globe have withdrawn from the market of this paraquat, including big markets like China, Brazil, EU and UK, and also our neighboring countries like Bangladesh and Sri Lanka. Government should order deregistration and ban of paraquat dichloride under the Insecticides Act of 1968. Establish a paraquat victim relief fund to support families who died or suffering long-term damages. Alternate weed controls like bush cutters, power weeders, other harmless chemicals like glyphosate and pesticrol should be given on subsidy, as this is a major harm, especially to the farmers who are using it very rampantly, unaware that there is this killing pesticide which is surrounding them, sir. So I request the government to immediately respond and impose a national ban on this dangerous pesticide. Thank you, sir. श्रीमान प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी. धन्यवाद श्रीमान. No, that is coming in between, sir. Paramilitary forces Give mic, please. This shirt is separate. No, that is slide is coming. Standard border is coming. Purely, it is RSS. No, that is my old photo. It is coming. I am RSS, no doubt about it. I will never deny it. हमारा 9 सेकंड चले गए, उसको ठीक करवाइए पहले. Chair has no RSS, chair has no Congress, that I know. Sir. He said it looks like RSS. Yes, I was an RSS. Yes. बढ़ जाएगा. हाँ बढ़िए. सर, सारे लोग जानते हैं. No, please. पैरामिलिट्री फोर्सेस संसद से लेके सीमा तक, औद्योगिक संस्थानों से लेके हवाई अड्डे और अन्य सारे महत्वपूर्ण लोगों की सेवा में मिलते हैं. लेकिन दुखद बात यह है, वो अपने जीवन को भी देते हैं, तमाम शहीद होते हैं, लेकिन उनकी सेवा शर्तें इतनी खराब हैं कि जो असिस्टेंट कमांडेंट हो जाता है वो 10 साल तक डिप्टी कमांडेंट नहीं बन सकता. मजबूरन इन संगठनों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने 23/5/25 को ये फैसला दिया कि ये फोर्सेस जो हैं वो ग्रुप ए के कार्यकारी कैडर अधिकारी 86 से संगठित ग्रुप ए की सेवा में माने जाएंगे. और ये भी कहा कि सेवा भर्ती नियमों में सभी परिणामी लाभों सहित 6 माह के भीतर आवश्यक संशोधन किए जाएं. 6 माह के भीतर कैडर समीक्षा पूर्ण की जाए. 2 वर्षों के भीतर महानिरीक्षक स्तर तक प्रतिनियुक्त पदों में चरणबद्ध संख्या कमी की जाए. इस पर जब कुछ नहीं किया, गृह मंत्रालय पुनः रिव्यू कर दिया वहां सुप्रीम कोर्ट में. रिव्यू की याचिका को मुख्य न्यायाधीश
सूर्यकांत जी की पीठ ने 28/10/25 को निरस्त कर दिया। फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बाध्यकारी फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पर लागू नहीं जब किया तो फिर इन संगठनों को कंटेम्प्ट में जाना पड़ा। पहली तारीख पड़ी 10/2/26, 10 फरवरी को। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा पीठ के सामने कि सरकार इस विषय में वैधानिक हस्तक्षेप पर विचार कर रही है। ये इतना निराशाजनक है सारे फोर्स के लिए। देखिए सर, एक इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक टीचर्स के बारे में कहा 20-20, 25-25, 30-30 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं, सबको इम्तिहान देना पड़ेगा, फेल हो जाएंगे तो हटा दिए जाएंगे। ये प्राइमा फेसी गलत फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उसमें रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट नहीं गई वहां। इसको रिव्यू करने के लिए संसद में न यहां आई और न वहां गई। यहां संसद के द्वारा इसको निरस्त कराना चाहते हैं। जो लोग अपनी जान दे रहे हैं आपकी रक्षा में, अगर कोई हमला करता है तो गोली पहले खाने के लिए वो तैयार रहते हैं। मुझे अफसोस है और आश्चर्य भी है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पालन क्यों नहीं कर रही है। 12-13 हजार अधिकारियों का सारा कैरियर खराब है। IAS, IPS लोग आ जाते हैं ना। ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो IAS और IPS लॉबी है वो श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी, हमारा काम खत्म हो गया, कर दिए, बोलने दिया जाए, पूरा काम नहीं करने दिया। हम ये चाहते हैं ये डॉटेड लाइन पर न करें। माननीय गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराएं और देश की सेवा में अपनी जान देने वाले अधिकारियों के लिए। श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आने वाले महीनों में देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से बिहार के दक्षिणी जिलों पर पड़ सकता है। बिहार राज्य के दक्षिणी भाग जैसे गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका और जहानाबाद जिला में लगभग हर वर्ष गर्मियों के दौरान जल संकट और सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कई वर्षों में बिहार में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए राज्य में सामान्य वर्षा लगभग 1137 मिलीमीटर मानी जाती है, जबकि एक वर्ष में केवल लगभग 554 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जो सामान्य से काफी कम है। इसी प्रकार कुछ वर्षों में राज्य में लगभग 26% तक वर्षा की कमी दर्ज की गई है, जिससे कृषि और जल उपलब्धता दोनों प्रभावित हुए हैं। दक्षिण बिहार के कई जिलों में तो स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। उदाहरण के लिए औरंगाबाद और गया जिला जैसे क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 950 से 1000 मिलीमीटर के आसपास रहती है, जो राज्य के कई हिस्सों की तुलना में कम है। कई बार मानसून के दौरान भी इन जिलों में 12% से 40% तक वर्षा की कमी दर्ज की गई है, जिससे किसानों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त वर्षा और अत्यधिक गर्मी के कारण इन जिलों में भूजल स्तर भी 10 से 20% तक गिरने की रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पेयजल संकट और बढ़ जाता है। माननीय सभापति महोदय, इस स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव किसानों, ग्रामीण गरीबों और पशुपालक पर पड़ता है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले महीनों में भीषण गर्मी के कारण इन क्षेत्रों में जल संकट और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि दक्षिण बिहार के जल संकट ग्रस्त जिलों के लिए विशेष जल संरक्षण और प्रबंधन योजना बनाई जाए और संभावित जल संकट को देखते हुए इन जिलों के लिए पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष केंद्रीय सहायता पैकेज प्रदान किया जाए। धन्यवाद। श्रीमान पागा वेंकट सत्यनारायण गारू। सर
Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me an opportunity. I rise to draw the attention of the August House to the urgent need for the greater accountability and responsibility regarding to the corporate social responsibility funds. As far as the Companies Act which has been stipulated, the profits which has been incurred for a particular company, at least 2% of the profits should be spent for the social responsibility. As the statistics of the government has clearly shows that under the financial year of 2023-24, nearly 34,908 crores of rupees have been allocated for under this provision. But in the common public, what actually the talk was, the profits were vested to the producers and the pollution was left to the public. So for curtailing the pollution, though there are so many laws were also made, the profits which has been actually acquired by the companies, the producers, they are not utilizing for cleaning, or they are not utilizing for rectification the atmosphere which has been polluted, which has been drawn by the particular companies. So in this regard, I urge the government through you to make a special laws regarding to the profits which has been acquired by those companies may be spent exclusively for rectification of the mistakes which has been committed by the industries through by way of cleaning the air pollution or other things. Though the pollution control boards were there, a number of laws were there, in spite of lapses on the part of their funds, they are submitting their reports to the concerned judicial system that in spite of these things which has been sustained to the public, they will be rectified in the forthcoming years, and in such a manner they are almost all postponing the every issue. So I urge through you to this government, let the monies or the funds which has been acquired by the companies should be exclusively utilized for cleaning of the clean pollution, so that the responsibility, the correct social responsibility may be utilized in this regard. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. श्रीमान महेंद्र भट्ट जी। महोदय, मैं आज के शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के निम्नलिखित अवलंबनीय विषय को उठाना चाहता हूं। देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य भारत के जंगलों में गर्मियों के दौरान वनाग्नि की घटनाएं एक गंभीर आपदा का रूप ले चुकी हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग 36% वन क्षेत्र आग के प्रति संवेदनशील है। आग के कारण बहुमूल्य वन संपदा, जैव विविधता, वन्य जीवों को भारी विनाश हो रहा है। वनाग्नि से न केवल लकड़ी का नुकसान होता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और जल स्रोतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका सीधा असर स्थानीय समुदाय की आजीविका पर पड़ता है। जंगलों से निकलने वाला धुआं और कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है और ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज कर रहा है। राज्यों के पास सीमित संसाधन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि राज्यों को फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट योजना के तहत अतिरिक्त फंड आवंटित किया जाए। आग की पूर्व सूचना के लिए बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम और आग बुझाने हेतु आधुनिक उपकरणों जैसे अग्निशमन हेलीकॉप्टर, ड्रोन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। स्थानीय लोगों और वन पंचायतों को प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे शुरुआती स्तर पर आग को रोकने में मदद कर सकें। अतः मैं सरकार से इस संवेदनशील विषय पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। P. Wilson ji. The regional benches of Supreme Court are very important to be established as they are access to the justice. Sir, in last 5 years, out of 593 judges appointed to the High Court, 473 judges, nearly 80% belongs to the forward communities. Even in the Supreme Court today, there is only one woman judge, 2 judges belonging to religious minority, 1 judge from the scheduled caste, and there is no judge from scheduled tribe. There is a need for a broader social representation so that the judiciary reflects the diversity of our society. Thirdly, the strength of judges in our higher judiciary is grossly inadequate. The judge population ratio in our country remains low. High courts have numerous vacancies while even the sanction strength is not sufficient. Sir, we must legislate for a mechanism to suspend judges facing serious allegations with clinching evidence without compromising independency of judiciary to retain public faith in the judiciary. Impeachment is a long-drawn and extremely complicated process. Question number 211, Shriman Sugandh Segar Rai ji. Sir, question number 211.
Honorable Minister. The answer is laid on the table, sir. First supplementary, Shriman Sugant Segar Rai ji. The ancient twin city of Gaur and Pandua in West Bengal was the capital of Pala and Sen empires of Bengal for more than 400 years. Even the place has been mentioned in our old scriptures. Archaeological survey maintains 21 monuments and archaeological sites and remains which is situated in Malda district of West Bengal. In 1930s, British government made aerial survey in the Pandua or Pundranagar area and decided for vigorous excavation but it has not yet been materialized for some reasons or the other. Similar situation with the mounds of Dinajpur district, where this is also a 2,400-year-old fortified city of Devi Court, mentioned in our ancient scriptures. So it was first excavated by Calcutta University in 1938. Now recently, the excavations was resumed by the government, but for some unknown reasons, it has been stopped. Similar situation is with Chandraketu God, another ancient site of Bengal, which has relevance with the history of Mohenjo-daro and Harappa. Sir, my question, first supplementary. You can straight away come to the question, please. Yes, to the Honorable Minister, that whether government will consider further excavating the ancient sites of Pandua in Malda district, Devi Court in Dinajpur, mounds of Devi Court in Dinajpur, and Pandua or Pundranagar in Malda district of West Bengal. Honorable Minister. Thank you, sir. Sir, excavation is a continuous process. और देश में प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से और उपलब्ध ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से कंटिन्यूस एक्सकेवेशन एक्टिविटी चलती रहती है। मैं सदन के संज्ञान के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक्सकेवेशन को लेकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत गंभीर है और पिछले 10 साल में, यदि उससे पहले के 10 साल की मैं तुलना करूं तो लगभग 2 गुने से ज़्यादा पैसा एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ पे खर्च किया है। राज्य सरकार का सहयोग यदि उचित तरीके से मिलता है तो निश्चित रूप से एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ को पूरा करने में हम सब लोगों को सुविधा भी होती है और उसे अधिक गति के साथ में कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में उस पर कब किया जाएगा, इस पर टिप्पणी करने के बजाय मैं ये कहूँगा कि एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस प्रोसेस है, उस पर हम भी इस पर भी हम जो है समानांतर रूप से विचार करते हुए काम करें। Second supplementary, Shriman Sugant Segar Rai ji, please be specific about your question. Yes, please. Pointed question, only one line preface from the reply. Out of 135 monuments and sites of national importance maintained by Archaeological Survey in West Bengal, only entry fee is charged in only 4 protected monuments, and revenue earning was about 4 crores on an average per year during the past 3 years. My pointed question is that whether the government will consider charging of entry fees for some other sites too, so that maintenance cost is minimized through earnings from entry fee. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि कंजर्वेशन और मेंटेनेंस दोनों का एंट्री फीस से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, क्योंकि जितना भी एंट्री फीस कलेक्ट होता है वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। सारा कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को या कल्चर मिनिस्ट्री को जो बजटरी एलोकेशन होता है उसके माध्यम से होता है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से एंट्री फीस का इससे कोई संबंध नहीं है। जहां तक कंजर्वेशन एक्टिविटीज का प्रश्न है, देश में कंजर्वेशन एक्टिविटीज में पिछले 10 साल में यदि मैं बात करूं तो बहुत गंभीरता के साथ में काम हुआ है। जहां 4 से 14 तक केवल इस मद में 1310 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, वहां पिछले 10 साल में ये खर्च बढ़कर के 3713 करोड़ रुपए हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम 100% सारा कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ पे जितनी आवश्यकता उतना कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इसको लेकर के एक बहुत रुझान और पॉजिटिव एप्टीट्यूड जो है पूरे देश भर में देखने को मिला है। हमने जो है अब इस तरह से कि देश के कॉरपोरेट सेक्टर इसमें साथ में जुड़े,
इसको लेकर के भी योजना शुरू की और उस पर भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है हमको मिला है। एनसीएफ के माध्यम से भी कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को हम प्रायोरिटाइज करते हैं और मैं विश्वास के साथ में इतना अवश्य कह सकता हूं कि कंजर्वेशन की गतिविधियों को हम आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राथमिकता के साथ में पूरा करें। Third supplementary, Dr. John Britas. Thank you, sir. Sir, the minister talked about the preservation of sites of cultural sites. My specific question is that there has been reports about increasing number of attacks on the cultural and heritage sites of minorities. And also, there has been demands that even the Taj Mahal's name should be changed to Tejo Mahalaya. Has the minister taken note of this increased number of attacks on the heritage sites of minorities, and also this calls for change of name of Taj Mahal by certain organization, and what is the stand of this government? Either such type of reports, because law and order and other things, security and safety, primarily are the subject of the state government, so they doesn't come to us, and there is no such idea of changing any name is under consideration of the ministry. Fourth supplementary, Shriman Ghulam Ali ji. शुक्रिया चेयरमैन सर। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के, मोदी जी के और कल्चरल मिनिस्ट्री के बहुत मशकूर हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी देखरेख और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं माननीय मिनिस्टर का मैं ध्यान हमारे जम्मू प्रांत में Please be specific about your question, please. SMGS एक पुराना महाराजा गुलाब सिंह जी का अस्पताल है कि जो जम्मू प्रांत पूरे को बच्चों के लिए और गायनी के लिए स्पेशलाइज्ड है, और इसके साथ एक रणवीर स्कूल है। दोनों ये पुरानी बिल्डिंगें हैं जो कि 1872 में महाराजा रणवीर सिंह जी के टाइम की बनी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या SMGS जो हॉस्पिटल का बिल्डिंग है और जो रणवीर स्कूल है, क्या इनकी मॉडिफिकेशन या इनका रिपेयर या इनका एक्सपेंशन जो है वो ASI की देखरेख में होता है, जहां करने का कोई विचार है? शुक्रिया। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं संरक्षण चाहूँगा। प्रश्न बंगाल से संबद्ध है, लेकिन माननीय सदस्य ने जम्मू एंड कश्मीर के दो विशेष जो है मॉन्यूमेंट्स या दो विशेष पुरानी बिल्डिंग्स के रखरखाव के विषय में बात की है। मॉडिफिकेशन तो ASI कभी कर नहीं सकती, क्योंकि हम तो धरोहर को ठीक उसी तरह से जैसी धरोहर थी ऐतिहासिक रूप से जिस स्थिति में थी जब वो नोटिफाइड मॉन्यूमेंट बनाए। मैं स्पेसिफिक आपने जिनके विषय में चर्चा की है उसके इतर भी जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ। उस पे हम किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन हम न तो करते हैं न अलाउ करते हैं। इवन एज पर अमसार एक्ट, ये एक्ट का पार्ट है कि उसके 100 मीटर रेडियस में भी हम प्रोहिबिटेड एरिया मानते हुए वहाँ रेगुलेट करते हैं कि हम वहाँ किसी भी तरह का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन न हो, और यहाँ तक कि जो है वहाँ किसी भी तरह का रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी अगर होता है तो उसको भी सरकार की परमिशन और ASI के द्वारा NOC प्राप्त करके किया जाए। बियॉन्ड दैट प्रोहिबिटेड एरिया फर्दर 200 मीटर्स एज पर एक्ट जो है वो रेगुलेटेड एरिया है, जिसमें हम परमिशन के बाद में इस तरह के जो है कंस्ट्रक्शंस को अलाउ करते हैं, मॉडिफिकेशंस को अलाउ करते हैं। इसलिए किसी भी मॉन्यूमेंट का मॉडिफिकेशन हो या उसका मॉडर्नाइजेशन हो, ये कतई ASI में परमिसेबल भी नहीं है और संभव भी नहीं है। फिफ्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमती राजादी जी। What measures have the union government taken to support the rich history of Tamil people, including publication of Keladi report and funding for preservation and showcase of this rich urban civilization, sir? Thank you. माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न का जवाब मैं पहले भी इस सदन में दे चुका हूं। किलाड़ी पर जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ था, उस एक्सकेवेशन के एक्सकेवेटर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पब्लिकेशन के लिए।
जो तय परंपरा है, जो प्रचलित परंपरा है और विश्व भर में सब जगह जो प्रचलित परंपरा है, उस रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी ने बैठ करके उस पर बात की थी। एक्सपर्ट कमेटी ने उस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियों को, जो टेक्निकल का भी कमियां थी, प्रोसीजरल लैप्स भी थे, उन सबको उद्घाटित किया था और उन सबको वापस जो है एक्सकेवेटर्स को भेजा था कि एक बार फिर जो है इसको इस दृष्टिकोण से पुनः जो है वापस तय किया जाना चाहिए। उसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। एक बार आने के बाद में ही उस पर तय प्रक्रिया और मापदंडों के अनुरूप उसको पब्लिश किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 212 श्रीमान संतोष कुमार पी अवरहल। सर, क्वेश्चन नंबर 212। ऑनरेबल मिनिस्टर, पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान संतोष कुमार पी अवरहल। Sir, I have gone through the answers furnished by the minister very carefully. I think he is misleading the House by providing inaccurate data. This is based on the year 2021-22. Thereafter, disruptions in informal economy and there is a boom in gig economy. So, how can you explain the vastness of this unorganized sector by providing a 5-year-old data? Moreover, we have e-Shram portal. What is there to ensure that all domestic workers and home-based workers are getting registered in it? Honorable Minister. चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कहा है कि उत्तर भ्रमित करने वाला है। उत्तर बिल्कुल भ्रमित करने वाला नहीं है। उत्तर स्वयं स्पष्ट है और देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, उसके लिए हमारी सरकार अग्रता से काम कर रही है। माननीय सदस्य का प्रश्न का मूल उद्देश्य ये था कि देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कितने वर्कर्स हैं जो असुरक्षित है। मैं उसका उत्तर आपके द्वारा माननीय सदस्य को देना चाहूँगा कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पहले तो कोई रजिस्ट्री ही नहीं थी। हमारी सरकार ने ई-श्रम पोर्टल बनाया और आज 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक ने स्वयं ने अपना एनरोलमेंट करा है। उसका हमने विवरण करा, कौन से सेक्टर में कौन कौन काम करता है वो भी उसमें सुनिश्चित है और उनके आधार पर उसको सोशल सिक्योरिटी की जो अलग अलग स्कीम है उसके साथ जोड़ा जा रहा है। उसका नतीजा ये निकला है कि देश में सोशल सिक्योरिटी का कवरेज बढ़ते जा रहा है और उसके लिए आप मेरे पर तो, सरकार पर तो भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका स्वभाव भी है, नेचर भी है, कार्यशैली भी है उसकी। बट ILO ने कहा कि 2019 में भारत में 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज था। लास्ट ईयर में ILO ने भारतीय डेटा का एनालिसिस करके उन्होंने कहा कि एक दशक में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के 64% हुआ है, यानी कि देश के 94 करोड़ लोगों को मोदी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी कवरेज देने में सक्सेस रही है। इस सोशल सिक्योरिटी के प्रति मोदी गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। Second supplementary, Shriman Santosh Kumar P. Avarhal. Sir, my first question was related to the inaccuracy of data. Instead of answering to that particular question, he was explaining the same answer, which was furnished to us. So kindly note that. My second supplementary is that distress migration is a reality in India. So I would like to know from which Indian states migrant workers are, going out of the states. Which Indian state? Is it Bihar or UP? So I would like to know the name of the state. Secondly, how can you ensure the minimum wage of these workers? Now, MNRAJ is practically stopped. The government did not notify the BBJ Ramji. So how you are going to, I hope in coming days, I fear that, not hope, that distress migration will be taking place more and more in the coming days. So how you are going to tackle this issue? Honorable Minister. माननीय सदस्य की चिंता को मैं सबंध करता हूँ कि ये देश विशाल देश है,
1.4 बिलियन 140 करोड़ की जनसंख्या है। ये देश में डाइवर्सिटी है, कोई जगह पे कोई बिजनेस है, कोई टाइप की इंडस्ट्रीज है, कोई जगह पे दूसरी टाइप की इंडस्ट्रीज है। और माइग्रेशन 2-3 प्रकार के होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी माइग्रेशन होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी माइग्रेशन होते हैं। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन होता हो तो ऐसी स्थिति में जो हमारे वर्कर्स माइग्रेट होकर जहां काम करने के लिए जाते थे उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं थी और किसी को पता भी नहीं था। लेकिन इस श्रम पोर्टल में हमने प्रावधान करा है कि कोई वर्कर्स कोई जगह पे जाए तो वहां भी उसका काउंटिंग हो और वहां वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि मैं आज बिहार से तमिलनाडु काम करने के लिए गया हूँ, तमिलनाडु से मैं उड़ीसा काम करने के लिए गया हूँ, उड़ीसा से मैं गुजरात में काम करने के लिए, जहां भी वो वहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा, वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत या तो ऐसी कई स्कीम की पोर्टेबिलिटी करी गई है ताकि उसको वहां भी उसका लाभ मिले। माननीय सदस्य ने यह भी चिंता करी कि भी उसका मिनिमम वेज का क्या। ये बात सही है कि मिनिमम वेज भारत सरकार आज तक एक एडवाइजरी के रूप में तय करती थी, लेकिन अभी लेबर कोड लागू हो चुका है। लेबर कोड में फ्लोर वेज की बात करी है। मिनिमम वेज को स्टेट गवर्नमेंट माने भी ना माने भी कोई लीगल बैकिंग नहीं था, लेकिन अभी जो लेबर कोड में ये प्रावधान करा गया है कि देश में एक फ्लोर वेज तय करा जाएगा। फ्लोर वेज से ऊपर स्टेट रख सकता है लेकिन उसके नीचे कोई नहीं रख पाएगा, ताकि हमारे देश के वर्कर्स की वेतन की सिक्योरिटी मिले। इस दिशा में मोदी गवर्नमेंट ने काम किया। सो थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान दीपक प्रकाश जी। धन्यवाद सभापति महोदय। असंगठित श्रमिकों के बेहतर रोजगार, न्यूनतम वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहतर और सटीक डाटा की जरूरत पड़ती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेहतर और सटीक डाटा बनाने के लिए कोई इनके पास कार्य योजना है तो क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सही बात है, समय डेटा का है। जिस देश के पास जितना डेटा रोबस्ट हो और डेटा को मेटा डेटा के रूप में इंटीग्रेट करा जाए और एआई का यूज करके उसको एनालिसिस करा जाए, तो मैं मानता हूं कि उसके लिए हमने कोई स्कीम बनाना है। कोई वर्कर्स हो उसको क्या लाभ मिल रहा है, क्या लाभ नहीं मिल रहा है, कौन सी स्कीम मिल रही है, कौन सी स्कीम नहीं मिल रही है, वो ऑटो मोड में एज ए डेटाबेस एनालिसिस हो सके, इसलिए डेटा बहुत जरूरी है। इसलिए ही हमारी सरकार ने ई श्रम पोर्टल का निर्माण करा। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य ये है कि जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड सारे वर्कर्स की रिपोजिटरी हो, कौन क्या काम करता है, कौन से काम के साथ जुड़ा है, कौन सी सरकार की स्कीम का लाभ ले रहा है, कौन स्कीम का लाभ उसको नहीं मिल रहा है। जो स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो सिस्टम ही उसको बताती है कि आप ये स्कीम के लिए भी लायक हो और ये स्कीम में आप अप्लाई करके सोशल सिक्योरिटी आप प्राप्त कर सकते हो। वहां तक डेटा इंटीग्रेट करने की कोशिश हमारी सरकार ने करी है और उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेटा आज जहां तक हम पहुंचे हैं कल पुराना हो जाएगा, कल उससे भी आगे बढ़ना होगा। हमारा प्रयास है कि डेटा इंटीग्रेशन और मेटा डेटा से हम देश के श्रमिक का कल्याण की दिशा में अच्छी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर, थ्रू यू एक पीड़ा सवाल से पूर्व एक इंटरनल कॉलोनियलिज्म का भी एक डेवलपमेंट थियरी में है। तो कभी कभी बहुत पीड़ा होती है कि हम बिहार वालों के हिस्से में ट्रेन आती है और निवेश किसी अन्य 2 राज्यों में जाता है। बहरहाल माननीय मंत्री महोदय से एक सीधा सा सवाल है और वो सवाल है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जिनकी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, सदन में भी चर्चा हुई है, मैंने स्वयं भी बातें रखी है, क्या उनके दृष्टिकोण से, क्योंकि आप आंकड़ा दे रहे थे आईएलओ कवरेज का, इट डज नॉट स्पीक अबाउट सब्सटेंस, क्या कवरेज का नेचर क्या है, हाउ वैलिड इट इज,
कवरेज का परसेंटेज बढ़ना, ये स्टैटिस्टिक्स का एक मैं समझता हूं सरल गेम है। तो उसकी दिशा में जहां प्रोटेक्शन फुल प्रूफ हो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की, उस दिशा में माननीय मंत्री महोदय कौन सी कार्य योजना पर आगे चल रहे हैं? शुक्रिया सर। ऑनरेबल मिनिस्टर मनोज भाई हमारे मित्र है और उन्होंने कहा कि मैं मंत्री जी को सीधा क्वेश्चंस पूछता हूं, तो मैं माननीय सदस्य को वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके उसको सोशल सिक्योरिटी कैसे दी जाए, ऐसा तय करने वाला कोई देश है दुनिया में तो पहला कानूनी प्रावधान से गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करके उसकी डिफिनेशन तय करने वाला देश भारत है। देश भारत है और आईएलओ ने भी, मैं तो भारत का एज ए भारत को रिप्रेजेंट आईएलओ में करता हूँ, उन्होंने भी सराहना करी और आईएलओ ने भी कहा कि भारत जो कर रहे हैं, कई कमेटी भी बनाई और भारत का मार्गदर्शन भी लिया ताकि भविष्य में और देश के दुनिया में करा होगा तो अच्छा होगा। जयराम जी को गलत नहीं है, मैंने जो भारत को रिकॉग्निशन दुनिया में मिला है वो बता रहा हूँ। हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि भारत ने उसके लिए एक प्रयास करा, मेहनत करी और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला देश भारत। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान रामचंद्र जांगरा जी। हमारे हरियाणा प्रदेश में राखी गढ़ी में 8000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन खुदाई चल रही है जिसमें ईंटें निकल रही हैं। उनको टकराते हैं तो ऐसे जैसे लोहा टकराता है ऐसे आवाज़ आती है। तो मान्यवर इससे ये विदित होता है कि हमारे कुम्हार की टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत थी ईंट पकाने की। लेकिन मान्यवर एक समस्या है इस कम्युनिटी के सामने। अब जैसे शुगर मिल 4-5 महीने चलता है तो ऑफ सीजन में उसके वर्कर्स को तनख्वाह मिलती है, चाहे आधी मिलती हो, और भी काम वो कर सकता है। लेकिन बरसात के दिनों में सारे भट्ठे बंद हो जाते हैं और कुम्हार पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है ईंट पकाने वाला। अब उस ऑफ सीजन में वो क्या करे, उसके बच्चे कहाँ से रोटी खाएं? उसके लिए कोई सरकार ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेगी कि ऑफ सीजन में भी भट्ठे पर काम करने वाले या संगठित मजदूर क्षेत्र को वेतन मिलता रहे, ऑफ सीजन में भी कोई सरकार ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेगी? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। चेयरमैन साहब मैं क्या जवाब दूं, लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है कि ऑफ सीजन में भी लोगों को काम मिले, इसलिए मोदी जी ने सुनिश्चित करा है जी राम जी के तहत उसको जब ऑफ सीजन होगी तब भी 125 दिन के लिए काम की गारंटी मोदी जी ने दी है। क्वेश्चन नंबर 213 डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। संख्या 213। ऑनरेबल मिनिस्टर। उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। प्लीज बी स्पेसिफिक शर्मा जी। मैं बिंदुवार पूछ लेता हूं, बिल्कुल स्पेसिफिक है। क्या KOHA जैसी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग में कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से अन्य राज्यों में आयोजित किए गए विशेष 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए? यदि हाँ, तो अब तक उत्तर प्रदेश के कितने पुस्तकालय पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया? और इसी में अंतर्निहित है कि क्या माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में है कि जो पुरानी पांडुलिपियां, संस्कृत पांडुलिपियां डिजिटाइज करने का कार्य आपके मंत्रालय में शुरू हुआ है, इंडियन कल्चरल पोर्टल के माध्यम से उसे सुलभ कराने के लिए इसी प्रकार का एक जो AI की तरीके से SI, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है, उसी तरह सनातन बुद्धिमत्ता SI का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने किया है, जिसमें 10,000 वर्षों की जानकारियां उपलब्ध की गई पांडुलिपियों के आधार पर और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर, पूरे विश्व से कलेक्ट की गई भारतीय संस्कृत के आधार पर उसको SI में दिया गया है, जबकि AI में 2000 तक का है, इसमें 10,000 तक की विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं। तो क्या उसको बढ़ावा देने का या उसको मान्यता और सहयोग पर सरकार विचार करेगी?
Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर प्रश्न खड़ा किया। माननीय सभापति महोदय, लाइब्रेरी जो है संविधान के आर्टिकल 246 के तहत स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और रेस्पेक्टिव स्टेट्स को उन लाइब्रेरीज के रखरखाव के लिए, लाइब्रेरीज के निर्माण के लिए, विकास के लिए, लाइब्रेरी एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए काम करना होता है। लेकिन भारत सरकार राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के तहत, जो एक कल्चर मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके तहत लाइब्रेरीज को अपग्रेडेशन के लिए, उनके रिस्टोरेशन के लिए, उनके फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम करती है। लेकिन उसके साथ साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी लाइब्रेरी जो राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से काम होता है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा, मैं पूरे देश की स्थिति बताते हुए माननीय सदस्य का जो उत्तर प्रदेश का विषय है वो सामने रखना चाहता हूँ। देश भर में कुल मिलाकर के इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल एनहेंसमेंट के लिए जो कार्यक्रम लिए गए और उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप की गई, ऐसे प्रोग्राम्स देश भर में 54 प्रोग्राम किए गए, जिसमें से 4 उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 190 लोगों को उसमें हमने जो है उनकी सॉफ्ट स्किल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेन किया, डिफरेंट सेमिनार वर्कशॉप्स के माध्यम से। माननीय सदस्य ने पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन की बात की है। मैं सदन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, वो हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको ज्ञान भारतम मिशन ऐसा नाम देकर के मिशन मोड में हम अपनी पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन करें, इसकी जो है रचना की है। इस कल्पना में डिजिटाइजेशन का अभिप्रेत केवल उसकी डिजिटल कॉपी बनाकर या डिजिटल वेब जो है उसका वर्जन बना करके स्टोर करना नहीं है, अपितु उसको हम किस तरह से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आएं ताकि विभिन्न भाषाओं में उसको आसानी से ट्रांसलिटरेट किया जा सके। एआई का उपयोग करते हुए इसको पूरा करने के ऊपर हम पूरी गति के साथ में काम कर रहे हैं। हमने देश और दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स को पिछले माह सितंबर में बुला करके उनके साथ में 3 दिन की कार्यशाला इसके ऊपर की थी। हम साथ बैठे थे, देश भर के तकनीकी विशेषज्ञों से इस पर चर्चा की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए जो डिफरेंट सब ग्रुप्स ने इस पर अपने रोड मैप बनाए थे, अपनी तरफ से दिशा निर्देश दिए थे, उनको 3 घंटे खुद स्वयं वहां उपस्थित रह करके सुना था और उसके आधार पर, उस रिकमेंडेशंस के आधार पर हमने उस पर काम करना शुरू किया है। इस तरह की सारी उपलब्ध टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके हम साथ में मिलकर के उस पर काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो विषय संज्ञान में लाया गया है, जो एसआई की उन्होंने बात की है, उस एसआई के जो डेवलप करने वाले लोगों के साथ में भी हम जो है सामंजस्य स्थापित करके इस दिशा में काम कर रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रेक्षा है कि क्या मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश के 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के मिशन के साथ सहयोग विभाग कर रहा है कि वे नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पोर्टल के साथ एकीकृत हो? बी, यदि हां तो संबंधित एकीकरण के लिए क्या तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है? सी, क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन ने वाराणसी में हाल में ही स्थापित 356 ग्रामीण पुस्तकालयों को प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए डिजिटल संसाधन संग्रह करने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? यदि हां तो तत्संबंधी ग्रामीण केंद्रों को प्रदान किए गए संसाधनों का विवरण क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं। एक ही सप्लीमेंट्री में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ABCD करके। जैसा मैंने अपने पिछले सप्लीमेंट्री का उत्तर देते हुए कहा कि लाइब्रेरीज बेसिकली जो है स्टेट एंट्री लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट्स को उसके ऊपर प्राथमिकता से काम करना है। लेकिन मैं इतना, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के म्यूजियम्स, भारत की लाइब्रेरीज, भारत के जो पुरा संपदा है उसके और भारत के आर्काइव्स में रखे हुए जो पुरातात्विक महत्व की हमारी संपत्तियां, उन सब का डिजिटल वर्जन जो है वो हमारे इतिहास से रिलेटेड, हमारे साहित्य से रिलेटेड, हमारी कला से रिलेटेड, हमारे पुरा संपदा से रिलेटेड, इन सब को हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एग्जिबिट कर सकें, इसको लेकर के इंडिया कल्चर पोर्टल बनाने की कल्पना की गई थी। और दिसंबर 2019 को जब इस कल्चर पोर्टल को बनाया गया था, तब से लेकर के
इस पर जो है लगातार लोगों की रुचि भी बढ़ती रही। अभी हाल ही में पिछली महीने की 5 तारीख को हमने इसका वर्जन 2 लॉन्च किया है, जिसको हमने आधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब से इक्विप किया और भारतीय भाषाओं में, सब भाषाओं में इसको देखा और पढ़ा जा सके, इस दृष्टिकोण से भाषिणी के साथ में जो भारत का निर्मित ट्रांसलिटरेशन प्लेटफॉर्म है उसके साथ में इसको अलाइन किया है, ताकि 22 भाषाओं में इसको सीधा प्रत्यक्ष रूप से लोग पढ़ करके, देख करके इसमें जो है जो कुछ एंट्रीज हैं उनको जान सकें, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक 57 लाख ऐसे पीसेस और पेजेस जो हैं इस इंडिया कल्चर पोर्टल पर हमने अपलोड किए। 2 करोड़ 11 लाख विजिटर्स ने अब तक इसको विजिट किया। इसलिए निश्चित रूप से इसको लेकर के, और जब इस पर भाषिणी के साथ में इसको अलाइन कर दिया है, तब इसके ऊपर रुझान निरंतर बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है कि हम उसको जो है उत्तर प्रदेश की गांवों की लाइब्रेरी के साथ में अलाइन कर रहे हैं कि नहीं, वो दैट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, एंड ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है, कोई भी उसको जो है एक्सेस कर सकता है। फिर राज्य सरकार, हमने मॉडल लाइब्रेरीज नेशनल मिशन लाइब्रेरी मिशन के तहत बनाए हैं, जहां राज्य की एक सेंट्रल लाइब्रेरी को और एक डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी को एज ए मॉडल लाइब्रेरी डेवलप करने के लिए हमने संसाधन उपलब्ध कराए। अब उन संसाधनों के जो हमने मॉडल लाइब्रेरीज देश में लगभग 67 ऐसी क्रिएट की हैं, उसके आधार पर राज्य सरकार अपने इनिशिएटिव लेकर के अपने यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के लाइब्रेरीज को उपलब्ध कराएं। कुछ राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है विभिन्न मैचिंग और नॉन मैचिंग ग्रांट के तहत। उनको अवेल करके राज्य सरकार अगर उस पर काम करती है तो निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके लिए आज के समय में किसी तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, माननीय सिंधिया साहब यहाँ बैठे हैं, आज देश में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स भी हैं और दुनिया में, और सबसे ज्यादा जो है सस्ता डेटा भी भारत में उपलब्ध है। आज बच्चे जो हैं इंडियन कल्चर पोर्टल को अपने घर में बैठकर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं, उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो एनएमएल के तहत हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमने लगभग 2 करोड़ रुपया पिछले वर्षों में उसके लिए दिया है, ताकि वो अपने लाइब्रेरीज को धीरे धीरे और अधिक इक्विप कर सके। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान इमरान प्रताप गढ़ी जी। धन्यवाद माइक सर। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। लाइब्रेरी से जुड़ा नहीं है लेकिन संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा है। चूंकि तीनों प्रश्न एक जैसे लगे हुए हैं आसपास, तो मेरा सवाल आपसे है कि पिछले दिनों दिल्ली के भारत मंडपम में सभापति महोदय एक संस्था है जिसका नाम सनातन संस्था है, उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने क्या 63 लाख रुपए की सहायता दी, जबकि उस संस्था पर गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या के आरोप हैं और उसकी जांच कर्नाटक पुलिस कर रही है। और उस कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए गए और आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो मेरा सवाल है कि क्या 63 लाख रुपए दिए गए, और अगर आप थे तो आपने इस कार्यक्रम में मंत्रालय की तरफ से सहयोग क्यों करवाया, और आप क्या मौजूद थे? मेरा सीधे सीधे सवाल है मंत्री जी से। अरे सभापति महोदय, प्रश्न बिल्कुल भी मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य को इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, वो अलग से इसके बारे में चर्चा करें, मैं उनको सारी जानकारी उसको दूंगा, लेकिन मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, इसलिए मैं इसका उत्तर यहां नहीं करता। डॉक्टर वी शिवदासन जी। Sir, that data given by the minister in this house shows that only 7 crore is the last year expense for library mission. Only 7 crore. They have given only 64.26 crore for the last 3 years assistance to Kerala through this mission. Sir, here in India, lot of reports have suggested minimum one library for 1,000 people. This is our ambition. But in India, situation is very worse. The villages, thousands of villages in India don't have libraries. The union government is providing the allocated amount for the libraries is very less amount they are providing. So it is not sufficient to establish an
expand the libraries in villages. So my question is whether the government of India have any plan to increase the financial assistance to the libraries to build in each libraries the physical, to arrange physical books and digital space for reading and writing to the students and enter the members of the society. So what is the stand on the government on the financial assistance to the state if government is not ready to provide the money to the state? Question is over. Yes, thank you, sir. Honorable Minister, please. Maanनीय Sabhapati Mahoday, while answering my first supplementary, I have clearly stated that under Article 246 of Constitution of India, the library is a state entry list subject. Government of India provides special assistance under National Mission of Libraries to the states to create or upgrade the existing libraries, one as a central library, as a state library, and one as recommended by the state government as a district library. Only for 2 libraries we extend this support, rest just to create a model library so that states can learn out of them and practice creating library infrastructure in their respective states and union territories. I would like to request, Honourable Member, that you please impress upon your government to create infrastructure, library infrastructure in the villages. But simultaneously, as I have answered in the previous question, that we have created a India Culture Portal and we have upgraded the India Culture Portal during last. So my answer, I have already stated that we have a limited scope because it's a state subject. Please impress upon your state to look into the subject and request them to do the library to improve the library infrastructure. 5th supplementary, Shriman Satnam Singh Sandhu ji. Thank you so much. आपने मुझे सप्लीमेंट्री का अवसर दिया. सर, मेरा सवाल सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को लेकर है. ये सिख रेफरेंस लाइब्रेरी 1946 में गोल्डन टेम्पल प्रसीर में इस्टेब्लिश की गई थी. सर, इसमें 20,000 रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स थी और इसमें हाथ लिखित ग्रंथ साहब भी थे और सिख इतिहास गुरु नानक देव जी से लेकर पूरा इतिहास था. लेकिन जब 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, जब दरबार साहब पे हमला किया गया, अकाल तख्त को ढह ढेरी किया गया, उस समय सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को जलाने का काम किया गया. सर, ये वैसे ही हुआ जैसे तक्षशिला नालंदा में हमारा इतिहास जलाया गया था, वहाँ सिख इतिहास जला दिया गया, गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पावन बीड़ जला दी गई. सर, मेरा सवाल है कि डिजिटल रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत क्या ये आज की एआई टेक्निक और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग के साथ इसकी रिकवरी हो सकती है? ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सदस्य ने बहुत रेलेवेंट प्रश्न किया है. किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते हुए, मानव सृजित आपदा के चलते हुए और जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत हुई, इस तरह की संपदा उस समय जल करके खाक हो गई, जल करके उसका नुकसान हुआ. निश्चित रूप से इन सब ऐसी सारी चुनौतियों को देखते हुए भारत की इस ऐतिहासिक पुरा संपदा जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल के अपनी विजडम, अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर सृजित किया था, उस सबको सहेजने, संवारने और चिरस्थायी बनाने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ज्ञान भारतम मिशन प्रारंभ किया है. हम उसमें उपलब्ध टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए उन सबको जो है उन सबको न केवल कंजर्व करने, प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं, अपितु उनको डिजिटाइज करके, इम्प्रूव करके अगर हम उनको होलिस्टिकली वापस रिक्रिएट कर सकें, इस पर भी काम करते हैं. माननीय सदस्य ने ये विषय आज संज्ञान में लाया है. निश्चित रूप से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में माननीय सदस्य से और इस विषय पर चर्चा करके कैसे हम इस विषय पर आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 214, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल. ऑनरेबल मिनिस्टर.
उत्तर सदन के पटल पे रखा है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह मुझे इनकी कार्यस्थली और जन्मस्थली जैसलमेर जाने का मौका मिला और मेरी फ्लाइट में इनसे मुलाकात हो गई और इन्होंने मुझे सजेशन दी कि मैं जैसलमेर फोर्ट जरूर देख कर आऊँ। तो सर मैं देखने गया और बहुत ही सर एक अद्वितीय हेरिटेज साइट है वो सर, जहाँ 5000 परिवार अंदर रहते हैं। उसमें मंदिर भी है, उसमें महल भी है, उसमें मार्केट्स भी हैं, बड़ी बड़ी गलियाँ जैसे चांदनी चौक में है। तो वो हाईली अप्रिशिएबल है और मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा मंत्री जी का कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। मेरा प्रश्न एक और जयपुर है राजस्थान में, जो मंत्री जी के स्टेट में भी है और मेरा परिवार भी जयपुर से ही आता है और शायद इसको वीर भूमि भी कहते हैं। लेकिन सर वहां जो डेवलपमेंट हो रही है जयपुर में, जो बिना सोचे समझे हो रही है, उससे जयपुर का जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस खतरे में पड़ रहा है। हमारे देश में सिर्फ 2 शहर हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस है, अहमदाबाद और जयपुर। सर 1991 में जयपुर में तकरीबन 1200 हवेलियां थी जो टूट फूट के अब कम होकर सिर्फ 800 रह गई हैं सर, 1/3 खत्म हो गई हैं। यूनेस्को ने 2025 की रिपोर्ट में जयपुर के कोर जोन और बफर जोन में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर कड़ी आपत्तियां दर्ज की हैं, जैसे कालूपुर रेलवे प्रोजेक्ट, मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। और क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का कोई हेरिटेज इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया, अब यूनेस्को ने दिसंबर 26 की एक सख्त डेडलाइन दी है कि यदि ये काम नहीं हुए तो जयपुर अपना वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस लूज कर सकता है, खो सकता है। माननीय सर, हमारी इकोनॉमी के लिए सर आगे You are giving a big lecture. नहीं सर, आगे सर मंत्री जी के स्टेट की बात करो, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। Giving a big lecture, then he has to big lecture in मंत्री जी की मैं तारीफ कर रहा हूँ सर। We are not able to complete your own question. आगे सर, आगे please आगे सर। You are running an educational institution, you should be very sharp in your question. सर आज 3 सेशन के बाद पहली बार मौका मिला प्रश्न पूछने का सीधा, तो मुझे आज इतना तो मौका सर देंगे। और मंत्री जी मेरी प्लीज कम सर, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। You have to come to the question. सर आ गया सर, भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। भारत का आकार, भारत की डाइवर्सिटी, अलग अलग मौसम, अलग अलग ऐतिहासिक इमारतें होने के बावजूद हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को भारत में अट्रैक्ट करने में 20वें नंबर पर हैं सर, 20वें स्थान पर। इतना सब कुछ होने के बावजूद छोटे छोटे देश सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यूएई हमसे आगे सर, यहां तक कि मकाऊ जैसा शहर भी हमसे आगे है। सर मेरा प्रश्न है मंत्री जी से, supposed to ask the question, you are giving a big lecture. सर आ गया, you are taking 3, 4, 5 minutes. सर हो गया जी। मेरा मिटल जी मंत्री जी से प्रश्न है कि जयपुर का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है, क्योंकि इसकी डेडलाइन दिसंबर 26 बहुत ही नजदीक आ रही है। This is your question ना? हाँ जी, you should have come in the first itself. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। Mr. You need not answer to all his speech. You just answer only to his last 2 lines the question. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का राजस्थान के बारे में, मेरे राज्य के बारे में जो कुछ इन्होंने कृपापूर्वक शब्द कहे उसके लिए आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जयपुर का हेरिटेज स्टेटस बना रहे। इन्होंने जो कालूपुर रेलवे स्टेशन और मेट्रो रेलवे स्टेशन के एक्सपेंशन को लेकर उसके सामने जो चुनौती खड़ी की है, मुझे लगता है कि रिपोर्ट पढ़ने में इनसे कहीं चूक हुई है। कालूपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन जो है जयपुर में नहीं अहमदाबाद में बन रहा है, तो इसके कारण से जो है कहीं कंफ्यूजन हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से
राज्य सरकार और देश की सरकार दोनों को इसके लिए संज्ञान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं सैंक्शन, उनके लिए सैंक्शन देना, उनका हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट कराना, ये सब राज्य सरकार के तहत आता है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने विशेष संज्ञान में लाया है, तो निश्चित रूप से गंभीरता को देखते हुए इस पर गंभीरता से काम करें, ये बहुत ही आवश्यक भी है। मैं माननीय सदस्य का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सेकंड सप्लीमेंट्री ओनली क्वेश्चन प्लीज। होगा सर, हम सब जानते हैं जो हमारा भारतवर्ष हमारे महान गुरुओं और संतों की धरती है, और इसमें हमारे पूज्य श्री गुरु नानक देव जी सर एक सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर वो पंजाब के लिए और देश के लिए सर। क्वेश्चन प्लीज सर, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना सर बाकी जगह भी मौका देते हैं सर, बैकग्राउंड का मुझे भी दे दीजिए काइंड। डोंट लुक एट देम, यू जस्ट कम टू द क्वेश्चन। सर, हमारे पूज्य श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने पूरी दुनिया को इंसानियत और भाईचारे का मार्ग सिखाया। सर, हमारे देश में 5 तख्त साहिब हैं और ऐसे ही ऐतिहासिक गुरुद्वारे तथा धार्मिक स्थल हैं जिनकी समृद्ध हेरिटेज और इतिहास है। सर, एसजीपीसी और दूसरी कार सेवा से जुड़ी संस्थाएं सिख विरासत को सरोजने का बहुत ही पवित्र कार्य कर रही हैं, जो सर प्रशंसनीय है। सर, वर्ष 1511 में उदासी यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी बगदाद गए सर। श्री गुरु नानक वहां सर एक पवित्र मौजूद है सर। आ गया जी, सर आ गया। श्री गुरु नानक देव जी बगदाद गए इराक में, और वहां एक पवित्र ऐतिहासिक स्थल मौजूद है जो सेकेंड वर्ल्ड वार और उसके बाद अमेरिका इराक वार के दौरान काफी डैमेज हो गया। इसी प्रकार विदेशों में और भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब हैं और सिख धरोहर स्थल हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं सिख धर्म के बारे में बात कर रहा हूं यार, क्यों रोक रहा हूं जी प्लीज। मैं सरकार से सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिलकर दुनिया भर में मौजूद सिख धरोहर और ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब की पहचान करके उनके रिस्टोरेशन के लिए और साइंटिफिक कंजर्वेशन के लिए कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने पर विचार कर रही है या नहीं, और यदि नहीं, माननीय विदेश मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस चीज में पहल करें ताकि हमारे गुरुद्वारों साहब से जुड़े पवित्र स्थलों को देश में और विदेशों में हम द्वारा पुनर्जीवित कर सकें। You have made a Guinness record in the length of the question. This is the longest question ever asked in the Parliament, I think. माननीय सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य आखिर में प्रश्न पे आ गए, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कि भारत की धरोहर, भारत के फुटप्रिंट, भारत के कल्चरल फुटप्रिंट जो पूरी दुनिया में है, उनके बारे में चर्चा की है। भारत सरकार एक योजना के तहत ऐसे सारे भारत के कल्चरल फुटप्रिंट्स, चाहे वो सिख रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड हो या हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, इन सब के जो भारत के कल्चरल फुटप्रिंट्स हैं उनके बारे में एक योजना बना करके उस पर काम करता है। मैं माननीय सदस्य को सिर्फ संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो सीमा के उस पार में है, आज वो भारत के नागरिकों के लिए दर्शन के लिए, सिख बंधुओं के दर्शन के लिए, जो कभी सीमा के इस पार खड़े होकर के दर्शन कर पाते थे, आज उनके लिए उपलब्ध है। मैं माननीय सदस्य को सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, माननीय विदेश मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए कि जब अफगानिस्तान में चुनौती आई तब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्होंने गुरु साहब का रूप जो वहां अफगानिस्तान में था उसको वापस भारत में प्रत्यार्पित किया और सम्मान वापस ला करके स्थापित किया। भारत अपनी रूट्स, अपनी कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है, काम भी करता है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में सामने खड़ी चुनौतियों को देखते हुए जो सीमितता है, उन सीमितताओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से अपनी जो है धरोहर के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय यादव जी। थैंक यू सभापति महोदय।
आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में राष्ट्रीय महत्व के 71 स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किए गए हैं, लेकिन जब मैं देख रहा हूं बजट पिछले 3 वर्ष का, तो बिहार को मात्र 30 से 31 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इन पुरातात्विक और संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए, जबकि जब तुलनात्मक रूप से देखा तो बिहार से जो छोटे राज्य हैं जिनमें कम पुरातात्विक और आपके संरक्षित स्मारक और स्थल हैं, उनको अधिक राशि आवंटित की गई है। जैसा कि सब कोई जानता है कि बिहार माता सीता की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की भूमि रही है, ज्ञान और मोक्ष की धरती है बिहार। तो बिहार में आप 71 स्मारक को और स्थलों के लिए जो आपने राशि आवंटित की गई है वो पर्याप्त नहीं है। 71 स्थलों के लिए आपको अधिक राशि आवंटित करनी चाहिए, और बिहार से जो छोटे राज्य हैं जहाँ कम स्थल है उनको अधिक क्यों की गई है, मेरा यही प्रश्न है। थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है उसका सम्मान करते हुए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार विरासत का संरक्षण और विकास, इन दोनों की इस मंत्र के साथ में आगे काम कर रही है। पिछले आदरणीय खड़गे साहब यहाँ विराजे हैं, उनके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार में कंजर्वेशन एक्टिविटीज के लिए जो है और रखरखाव के लिए एएसआई को जो एक्सपेंडिचर किया था वो 13 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले 10 साल में 37 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया गया। 3,713 करोड़ रुपए उस पे खर्च किया गया। 1310 करोड़ वर्सेस 300% की ग्रोथ उसमें हुई है। माननीय सदस्य ने बिहार को लेकर के जो प्रश्न किया है कि कुछ राज्यों को जहां कम खर्च हुआ, ज्यादा खर्च हुआ, कम नंबर्स पे होते हुए, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि खर्च और एएसआई की कंजर्वेशन गतिविधियां जो है वो गतिविधियां केवल नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स के आधार पर नहीं होती, अपितु वो गतिविधियां आवश्यकता के आधार पर होती हैं। यदि किसी प्रदेश में एक भी मॉन्यूमेंट है और उसको अधिक रखरखाव की जरूरत है तो वो कोई प्रोराटा बेसिस पर पैसा देने के बजाय उसका कंजर्वेशन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अप्रोच के साथ में एएसआई काम करती है, लेकिन जो एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब ठीक से कंजर्व हो, ठीक से प्रिजर्व किए जाएं, उनका रखरखाव ठीक से हो, उनके चारों तरफ का एम्बियंस ठीक से रखा जा सके, इस पर जो है सरकार गंभीरता के साथ में काम करती है। इसलिए केवल नंबर्स के आधार पर यह तुलना करना उचित नहीं है। बिहार के जो है मॉन्यूमेंट्स भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने जम्मू एंड कश्मीर और देश के अन्य राज्यों के लिए। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन गार्गे जी। धन्यवाद आपको मुझे चांस दिए और मेरा नाम लेके वो कंपैरिजन स्टेटमेंट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन मैं उस डिपार्टमेंट के लिए 2-4 खत लिखा कि अमरावती के जो सातवाना किंग थे वो राजा ने बुद्धिज्म को अमरावती से लेकर इधर गुलबर्गा और रायचूर इधर स्प्रेड किए थे। तब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो विहार मिला, बुद्ध विहार। तब मैंने सोचा कि इसका सर्वे कराया जाए और वो हो गया भी। होने के बाद फर्दर सर्वे करने के लिए, एक्सकवेशन करने के लिए मैं गवर्नमेंट से विनती की, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ। कि ये जो है जो बुद्धिस्ट विशेष करके, लेकिन हम कुछ बोले आप लोग एकदम गुस्से में आते हैं। अगर कुछ सत्यता इतिहास में जो है वो चीजें भी आपके सामने रखेंगे तो भी गुस्से में आते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले नागार्जुन, जो आचार्य नागार्जुन अमरावती के आचार्य थे, उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत बढ़ावा दिया और उन्होंने बहुत से ब्राह्मण्स जो थे उनको मॉन्क्स बना के सब तरफ बुद्धिज्म फैलाने का काम उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद में खैर
अलाउद्दीन खिलजी ने अलग किया तो शंकराचार्य जी ने भी अलग किया. What is your question? What do you want from the minister? So I have already written 2-3 letters. I want a further, it should be excavated. Correct. And on Bhima River and on Krishna River, number of such Buddhist temples are there, Buddhist symbol. Those things should be, you should take care of that, because in this area they are not taking you want care. Excavation there? Yeah. Okay. Therefore, I Honorable request Minister, him, please. because he is kind enough for everybody. But why he is not kind enough No, to he me? is more kind to you, towards you, please. How can I go and ask for these things? I write only later. Thank you very much. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो है एक्सकेवेशन एक्टिविटीज को हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे. लेकिन मैं साथ में माननीय खरगे साहब से अपेक्षा कर रहा था कि जब वो बुद्ध के दर्शन की बात करें, बुद्ध से जुड़े हुए विषयों को लेकर के भारत सरकार की गंभीरता के विषय में बात करें, तो वो शायद भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए मेरी पीठ कुछ थपथपाते कि भारत से खुदाई के समय जो पिपरवाह से जूल्स जो है रेलिक्स लेकर ले जाकर के निकाले गए थे, जिनको अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने दान कर दिया था, जो एक्सकेवेटर था उसको दे दिया था, भारत सरकार की पहल से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय विदेश मंत्री जी के सहयोग से हम उनको वापस भारत लाने में कामयाब हुए और 127 साल बाद में उनको रीयूनिफाई कर सके. मैं धन्यवाद करता हूं माननीय खरगे साहब का कि उन्होंने कृपा पूर्वक खुद जाकर के उसको देखा और उन्होंने एक एप्रिसिएशन के साथ में उसको ट्वीट भी किया. मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मैं सम्मानित सदन के सब सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके पूरे विश्व स्तर पर चर्चा हुई. हम अपनी 2500 साल पुरानी विरासत को जो 127 साल पहले भारत से बाहर चली गई थी, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके प्रयास से वापस लेकर के आए. हमने उसको किला रायपिथौरा में कुतुब एनक्लेव में उसको एग्जिबिट किया है, एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन किया है. लाखों लोगों ने जाकर के उसको देखा है, दुनिया के शीर्ष लोगों ने, बुद्धिस्ट वर्ल्ड के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है. आप सब लोग भी 1-2 घंटे का समय निकाल करके मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप सब जाकर के देखें. भारत के प्रति गर्व के बोध से आप सब लोग अभिभूत होकर के वहां से निकलेंगे, ये मैं भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं. 5th supplementary, श्रीमती सुलादा देव. थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जो उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल है, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट में है, वहाँ पर ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी, जहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले 2nd पद्म संभव कॉन्क्लेव हुआ था, वहाँ पर 18 देशों से डेलीगेट्स भी आए हुए थे. वो जगह को डेवलपमेंट करने के लिए, वो जगह जो 3 मॉन्यूमेंट्स है वहाँ वो थोड़े खराब भी हो रही है, उसका रेस्टोरेशन और उसको किस तरह से उसका संग्रहित करें, उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज है क्या? थैंक यू सो मच सर. ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय, स्पेशल पैकेज किसी विषय को, किसी स्थान को लेकर के हो, ऐसा भारत सरकार में प्रावधान नहीं है. लेकिन माननीय सदस्य ने जो 3 स्थानों के बारे में जिस डायमंड ट्रायंगल की बात की है, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है. अभी हाल ही में उदयगिरी में एक्सकेवेशन में पिछले कुछ महीनों पहले ही एक बड़ा अवशेष जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा का वहां से मिला है. वो एक्सकेवेशन प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है. मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार यदि उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने को लेकर के यदि कुछ वहां से भेजती है, तो वहां से प्रतिवेदन भेजती है, तो तय जो भारत सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं के आधार पर, योजनाओं के अंतर्गत उन पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है. ये राज्य सरकार को उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए जो है राज्य सरकार को पहल करनी होगी. माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अभी बजट में घोषणा हुई है कि हम 15 इस तरह के आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, माननीय सभापति महोदय सिर्फ ये आधा मिनट शेष है, उतने में अपनी बात समाप्त करता हूं कि एक्सकेवेशन साइट्स नॉर्मली साइंटिफिक एक्सकेवेशन के बाद में उनको बंद कर दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वडनगर की एक्सकेवेशन साइट को हमने एज एन एक्सपीरियंस सेंटर क्रिएट किया
और वो एक्सपीरियंस सेंटर बनने के बाद में उसका अद्भुत अनुभव वहां जाने वाले लोगों को मिला है। उसी के आधार पर देश परियोजना को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषित किया और उसके तहत हम 15 सिलेक्टेड ऐसे आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की साइट्स को जो है हम एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रतिवेदन भेजेंगी तो निश्चित रूप से जो भी सरकार की योजना है उसके तहत उस पर विचार किया जाएगा।